Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. You are watching YouTube channel Real Life Study. This is the book of grade 5, which name 3rd edition New Oxford Modern English. Today we are going to solve full exercise of stopping by words on a snowy evening. Exercise consists of many parts. First of all है understanding the poem. Next है working with words, abbreviation, contraction, learning about language, listening and speaking, और लास्ट में है composition. एक्सरसाइज लास्ट तक 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व है. वीडियो पूरी देखिएगा, आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में मिलेगा. फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है टू whom did the woods belong. आंसर लिखें, मैं इसके नोट बना चुकी हूँ. The wood belonged to the person who lived in a village. Next question है Did the writer see a farmhouse? आप इसका आंसर लिखें. No, he didn't see a farmhouse. C question है During which season do you think this event took place? Give a reason for your answer. आंसर लिखें. The event took place during winter. Reason is that snow is falling. It only falls during the winter. D question What mood or atmosphere does this poem create? आंसर है इसका mysterious, calm, peaceful, quiet, tone times. Next question है How many you explain to someone in 2 sentences what this poem was about? First लिखें This poem is about the writer who was fascinated by the woods covered with snow. Next point लिखें It is about fulfilling the promises and responsibilities. F question है Why do you think the writer stopped by the woods? आंसर लिखें इसका The writer stopped by the woods because the wood covered with snow has fascinated him. G question है Why was the horse puzzled? Puzzled मतलब है परेशान. The horse was puzzled because they have stopped where there was no rain box. H question है और इसका लास्ट क्वेश्चन है Where do you think the writer was going? I think the writer was going to farmhouse. What is the rhyming pattern in the poem? Do all the stanzas have the same pattern? रैमिंग पैटर्न बताना है. रैमिंग पैटर्न है नो, थ्रू, हेयर, स्नो. ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी सी डी 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 डी. रैमिंग पैटर्न कैसे बनता है? जो रैमिंग वर्ड्स होते हैं, एक जैसे जो वर्ड्स होते हैं वो एक पैटर्न में आते हैं. जैसे यहाँ नाम दे दिया है ए नो, आखिर में नो जो वॉइस निकल रही है वो यहाँ थ्रो की भी एक जैसी वॉइस आ रही है. हेयर, क्वेयर, नियर, हेयर, नियर, यहाँ भी आर की, इन तीनों आर का साउंड आ रहा है, इसलिए ये बी इसका पैटर्न बनता है बी बी बी. सी, लेक, के की आवाज़ आ रही है, इसको हमने सी बना लिया. इसका रैमिंग पैटर्न सी बन गया है. और डी पैटर्न भी इसका बन रहा है स्वीप, डीप, कीप, स्लीप और स्लीप. एक और क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन में पूछा गया है डू ऑल द स्टेंजाज हैव द सेम पैटर्न? नो, लास्ट पैटर्न स्टेंजा इज डिफरेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट. ही गिव्स हिम हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक. फर्स्ट क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन इसी लाइन से रिलेटेड हैं. हु इज द ही the poet is speaking about? आंसर है इसका poet is speaking about horse. What is the harness? आंसर है इसका ए का आंसर ये है the poet is speaking about horse. बी का आंसर है harness are leather straps fixed together and fitted to an animal such as a horse so that it can be attached to a cart or carriage for pulling. C question है what is the possible mistake?
सी का आंसर लिखें, द पॉसिबल मिस्टेक इज टू स्टॉप विदाउट हैविंग अ फार्म हाउस नियर बाय। वी हैव वर्किंग विद वर्ड यानी लफ्जों के साथ काम करना, सफिक्सेस। समटाइम्स वी कैन ऐड द सफिक्स वाई टू अ वर्ड when we wish to use it as an adjective. Example, down can be turned into downy. Suffix को उर्दू में लाह का, जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं सांप के लाह के, तो सफिक्स को उर्दू में लाह के कहा जाता है, यानी किसी वर्ड के आखिर में कुछ इजाफी वर्ड्स लगाए जाते हैं जिसको सफिक्स कहा जाता है, यानी लाह का कहा जाता है। सम टाइम वी कैन ऐड द सफिक्स वाई, बाज़ औक़ात हम वाई का सफिक्स यूज़ करके टू अ वर्ड किसी लफ्ज़ के साथ ऐड करके, व्हेन वी विश टू यूज़ इट एंड एन एग्जेक्टिव, अगर हम उसको एग्जेक्टिव के तौर पर यूज़ करना चाहें, जैसे कि डाउन। A noun meaning is soft feathers of young birds can be turned into a downy an adjective. अब डाउन से हमने डाउन बना लिया। डाउन के साथ हम अगर y का इजाफा कर लेते हैं, यानी सफिक्स का इजाफा कर लेते हैं, तो ये नया वर्ड बन जाएगा। वर्ड क्या बनेगा? डाउनी। सफिक्स का मतलब तो आपको आ गया होगा। ऐड द सफिक्स y टू दीज वर्ड्स, यहाँ हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें हमने y को ऐड करके, यानी लाह का कौन से वर्ड का लगाना है, लाह का लगाने के लिए हमने कौन सा वर्ड लगाना है? y to these word and then use the new word। अब ये फिर नए वर्ड बन जाएंगे, adjectives you have made in sentence of your own, और फिर उन नए वर्ड्स को जो हम y के सफिक्स y का इजाफा करके जब वो एग्जेक्टिव्स बन जाएंगे तो उनके फिर सेंटेंसेस बनाने हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, शेप एंड कलर। फ्लफ है, अगर हम y का इजाफा कर लेते हैं तो ये वर्ड बन जाएगा फ्लफी। फन के साथ अगर हम ny का इजाफा कर लें तो ये बन जाएगा फ़नी। लीफ के साथ जब हम y का इजाफा करेंगे, वैसे लीफ पत्ते को कहते हैं, अगर हम y का इजाफा कर लेंगे तो इससे का मतलब बन जाएगा पत्तों वाला। शुगर के साथ y का इजाफा करने के बाद ये शक्करदार बन जाएगा इसका। बैंड के साथ अगर हम y का इजाफा कर लें तो ये बन जाएगा लचकदार। अब आइए इसकी सेंटेंस की तरफ। मैं इसके नोट बना चुकी हूँ, आपसे भी शेयर करूँगी। फ्लफ़ी, आई हैव अ फ्लफ़ी पिलो। फ़नी, the funny clown at the circus made me laugh. Leafy, the leafy trees provided shade. Sugary, the sugary donut was so delicious. Bendy, the bendy straw made it easy to drink my juice. Next question की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐड द सफिक्स y, यानी y के इजाफे से सफिक्स बनाने हैं टू द फॉलोइंग में जो हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। वेयर पॉसिबल, हर वर्ड के साथ हमने y का इजाफा नहीं करना, जहाँ पॉसिबल हो वहाँ हमने y का इजाफा करके सफिक्स का इजाफा y के ज़रिए करके वर्ड बनाने हैं। नॉट ऑल द वर्ड दैट द सफिक्स y, सो चेक इन अ डिक्शनरी, चेक योर स्पेलिंग। चेंज, रन, RUNNY, रनिंग, इसका हम बना सकते हैं रनी। शेड से शेडी, क्लोज का नहीं बना सकते। शाउट कभी नहीं बना सकते। हॉर्न, काटना, इसका मीनिंग अभी है काटना। वाई का जब हम इजाफा करेंगे, सफिक्स वाई लगाएंगे, नया वर्ड बनेगा थोर्नी, यानी कांटेदार। वेट, वेटी, कोल्ड का नहीं बना सकते। स्नो, स्नोवी, सन, सनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एब्रीवेशन, एब्रीवेशन किसे कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं। जब हम किसी वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसे एब्रीवेशन कहते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट एन एब्रीवेशन इज़? क्या आपको याद है कि एब्रीवेशन किसे कहते हैं? इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग समथिंग। एब्रीवेशन की डेफिनेशन क्या है? इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग समथिंग, यूजुअली ओनली द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैव देयर इनिशियल लेटर्स इन द एब्रीवेशन। एब्रीविएशन को उर्दू में मुखफ़फ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुखफ़फ़। बैचलर, एग्जाम्पल यहाँ दी गई है। बैचलर ऑफ आर्ट इज़ नॉट BOA बट BA। बैचलर ऑफ आर्ट को ऑफ का यूज़ नहीं होता है, यानी ऑफ के साथ जो ओ लगा हुआ है वो यहाँ नहीं लिखेंगे, जस्ट लिखा जाता है BA, यानी बैचलर ऑफ आर्ट। ये सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जो बहुत फेमस वर्ड होते हैं, उनके एब्रीविएशन बन सकते हैं। हर वर्ड का एब्रीविएशन नहीं बन सकता। सी इफ़ यू कैन राइट एब्रीविएशन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ जो हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके हमने एब्रीविएशंस लिखने हैं। मास्टर ऑफ साइंस को कैसे लिखेंगे? MS। कुछ एब्रीविएशन बनाते वक्त कुछ वर्ड्स के बीच में पॉइंट लगता है,
और कुछ ये डॉट यानी डॉट लगता है और कुछ वर्ड्स के बीच में नहीं लगता। मास्टर ऑफ साइंस के बीच में एम और एस के बीच में ये डॉट ये पॉइंट लगेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके बीच में एम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एब्रीविएशन है एम पी, लेकिन इनके बीच में डॉट या पॉइंट नहीं लगता। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC, और तकरीबन ये वर्ड जब एब्रीविएशन बनाते हैं तो ये वर्ड्स कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। इन वर्ड्स की जो मुखफ़फ़ बनता है तो ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ट्रेड यूनियन TU, यहाँ पर भी कोई पॉइंट बीच में मौजूद नहीं है। साउथ ईस्ट SE, इस हर मैजेस्टी HM, यहाँ पर भी बीच में कोई पॉइंट मौजूद नहीं है। मास्टर ऑफ आर्ट M.A, हम अगर मास्टर ऑफ आर्ट का एब्रीविएशन बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे M.A। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन M.D, MD और MD के बीच में क्या पॉइंट आएगा। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी PhD, यहाँ ध्यान रखें कि P कैपिटल है, H जो है वो यहाँ मैंने दोबारा लिखा हुआ है, वहाँ शायद आपको सही समझना है। PH.D, P कैपिटल है, D भी कैपिटल है, लेकिन H को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। PhD, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी PH.D। बैचलर ऑफ एजुकेशन B.ED, D को स्मॉल लिखेंगे, बाकी B और E को, और बीच में ये डॉट भी आएगा, B और E को कैपिटल लिखेंगे और ये डॉट लगाना ना भूलिएगा। कंट्रैक्शन, इस तरह एब्रीविएशन में हम जो ख़ास लफ्ज़ होते हैं उनके एब्रीविएशन बन सकते हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह कंट्रैक्शन किसे कहते हैं, राइट द शॉर्ट फॉर्म, जैसे ये है IM, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, I नहीं लिखेंगे, M लिखेंगे, लेकिन बीच में हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे M। कैन नॉट कंट्रैक्शन फॉर्म क्या है, कांट, CAN, T, कांट। देयर आर को कंट्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देयर, फिर इनके प्रोनाउंसिएशन है ये भी चेंज हो जाएगी, देयर। हैव नॉट का कंट्रैक्शन फॉर्म क्या है, हैवेंट। दे विल का देल, विल नॉट का वांट, दे हैव का देव, शल नॉट का शंट, आई वुड का आइड, वी आर का हम लिखेंगे वियर। इट इज का शॉर्ट फॉर्म यानी कंट्रैक्शन फॉर्म क्या है, इट्स, और शी विल का कंट्रैक्शन फॉर्म क्या है, शील। सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। होमिनिम्स, क्या वर्ड है ये, होमिनिम्स। Homonyms are words that have a similar pronunciation and similar spelling sometimes, but they have different meanings. Homonyms वो अल्फाज that have a similar pronunciation, जिनकी pronunciation एक जैसी होती है और बाज़ औक़ात उनकी स्पेलिंग भी एक जैसी होती है, लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। किसके, होमोनिम्स के। होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होती है, एक जैसी होती है, यानी उसकी जो आवाज़ होती है वो एक जैसी होती है, बाज़ औक़ात स्पेलिंग भी एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। उन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, होमोनिम्स। नेक्स्ट पेज पे हमें होमोनिम्स की एग्जांपल दी गई है अ लार्ज एनिमल, रीच को कहते हैं बर्दाश्त करना। टू बी एबल टू डील विथ समथिंग, दोनों की स्पेलिंग एक जैसे हैं लेकिन उनके मीनिंग में फ़र्क है। मीनिंग में फ़र्क हम कैसे जानेंगे, हम सेंटेंस को गौर से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस भी दिए गए हैं हमारे समझाने के लिए। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वी शुड नॉट लाई टू ईच अदर। अब यहाँ पे लाई और यहाँ पे लाई दोनों की स्पेलिंग एक जैसी है। सेंटेंस के मुताबिक हमने ये डिसाइड करना है कि इस लाई का क्या मतलब है। लाई हेयर मीन्स टू नॉट टेल द ट्रुथ, यहाँ पे लाई का मतलब है कि सच नहीं बोला जा रहा। यहाँ पे लाई का मतलब क्या है, झूठ। अली wanted to lie down because he was, यहाँ पे लाई का क्या मतलब है, सेंटेंस के मुताबिक हम ये कोशिश करेंगे कि ये कौन सा वाला लाई है। Here, lie here means to be in a resting position.
इस लाई का क्या मतलब है? रेस्टिंग पोजीशन में है, जबकि दोनों की स्पेलिंग एक जैसी है। अब हमें मजीद कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें हमने खुद करेक्ट होमोनिम्स का यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ए सेंटेंस है ही डजंट ईट डैश, ये भी मीट है और ये भी मीट है, ये मीट गोश्त और ये मीट मिलना। ही डजंट ईट मीट, कौन सा मीट ठीक होगा? गोश्त वाला। हु एट द लास्ट कुकीज, हम कौन सा एट लिखेंगे? ये वाला ATE। नेक्स्ट है राफे एंड जेल डैश चॉकलेट चिप्स कुकीज, मेड बनाना और मेड नौकरानी। अब यहाँ पे हम कौन सा मेड यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ पे नाम दिए गए हैं कि राफे और जेल ने चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाई, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? बनाने वाला जो मायने रख रहा है, मेड यानी बनाना। यहाँ पे हम इस मेड का यूज़ करेंगे, यानी इस ब्लैंक में हम MADE की फिलिंग करेंगे। दिस बुक वॉज डैश हर फेवरेट ऑथर। इस बाय का मतलब है खुदा हाफिज कहना, जैसे हम कहते हैं बाय बाय, तो ये वो वाला बाय है और ये बाय, दोनों के जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक जैसे हैं, जबकि इनकी मीनिंग जो है वो अलग अलग है। इस बाय का मतलब है की तरफ से और इस बाय का मतलब है यानी जो हम कहते हैं गुड बाय। तो कौन सा वाला वर्ड यूज़ होगा? BY बाय। दिस बुक वॉज बाय हर फेवरेट ऑथर। लास्ट है दिस इज द डैश आइडिया ऑफ द नेक्स्ट, कौन सा यूज होगा? मेन, MANE मेन, जानवर के गर्दन पे जो बाल होते हैं उसको मेन कहा जाता है और इस मेन का मतलब है मरकजी। दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, यहाँ पे हम इस मेन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है D लिसनिंग एंड स्पीकिंग। से द फॉलोइंग अलाउड क्लियरली एंड स्लोली। हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो आपने खुद लाउडली, क्लियरली और स्लोली पढ़ना है। ये एक्टिविटी समझ लें इसको। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कंपोजिशन की तरफ जाने से पहले आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सकेगी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। E कंपोजिशन, राइट अ पैराग्राफ और टू अबाउट वेयर द राइटर माइट हैव बीन गोइंग, व्हाट वर्क डिड ही हैव, व्हाट वाज ही गोइंग टू सी, डिड एनीथिंग हैपन टू हिम। यू कैन रेफर टू द पैराग्राफ राइटिंग गाइड ऑन पेज 152। एक या दो पैराग्राफ लिखें कि सवार कहाँ जा रहा होगा। What work did he have? इसे क्या काम था? Who was he going to see? वो किसको देखने जा रहा था? Did anything happen to him? क्या इसे कुछ हुआ? You can refer to the paragraph writing guide page on page 152. पेज 152 में इसी बुक में पेज नंबर 152 पे पैराग्राफ राइटिंग के बारे में थोड़ा गाइड किया गया है। पेज नंबर 152 व्हाट इज़ ए पैराग्राफ, पैराग्राफ के बारे में बताया गया है इसमें, और फिर आगे इसके काइंड्स भी दिए गए हैं कि किस तरह पैराग्राफ लिखना है। आप इस पेज को अच्छे से रीड कर लेना, इसमें पैराग्राफ राइटिंग के बारे में नॉलेज दी गई है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन कर चुकी हूँ, आपसे भी शेयर करूँगी। The writer might have been going to village to meet with the owner of the woods. They might have to see someone regarding his personal work. According to the poet, the writer has to reach the responsibilities. Nothing happened to him, only woods covered with snow has. आज हमने poem Stopping by Wood on a Snowy Evening की full exercise solve कर ली है। इससे आगे इंशाल्लाह यूनिट नंबर 3 डज ही रिमेंबर की फुल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।